Hello everyone and welcome to DNA Education. I am Himanshi and today we will be discussing about combination of resistors and the heating effect of current. In our last session we have studied about Ohm's law. Now let us see how different resistors can combine in different ways and what is their equivalent resistances. The first case is the series case. As you can see that there are three resistors R1, R2 and R3 in this circuit, and all these resistors are connected end to end. This end to end combination of resistors is called series combination of resistors. जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है, they are in series, that is one after the other. Now in such a case we see that the current will flow from positive to negative terminal and the same current will flow through all of these resistors and will complete the circuit. So we see that in series combination of resistors, current through all the resistors remains same. So we can say that current is same through R1, R2 and R3, but potential difference across R1 is V1, R2 is V2 and R3 is V3. That means potential हर एक resistor के पास अलग अलग होती है because यहाँ पे joints हैं. हर दो points के बीच में एक potential है and दूसरे points के बीच में दूसरी potential है. That means कि series combination में current तो same जाता है resistors में, but potentials जो होते हैं वो divide हो जाते हैं across individual resistances. That means कि टोटल पोटेंशियल जो होता है वो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का सम होता है. दैट मीन्स V complete V will be equal to V1 plus V2 plus V3. In Ohm's law we have studied that V is equals to current into resistance. So suppose total current is I, then it will be IRS. RS indicates total resistance of series combination. V1 will be IR1, IR2 and V3 will be finally IR3. In this case, if current is eliminated, we will get series resistance is equals to R1 plus R2 plus R3. So we can say that in series combination, the total resistance of all the resistors is the arithmetic sum of the individual resistances. Next we move on to the parallel combination. As you can see, three resistors R1, R2 and R3. There are just these 2 points and all the three resistors are connected between these 2 points. Such kind of combination is called parallel combination as the resistors run parallel to each other. जैसा कि diagram से depict भी हो रहा है कि ये सब parallel हैं. Now in this case, when current will originate from positive terminal and it will enter this junction, the current will divide in all the three branches. So R1 will receive current I1, R2 will receive I2, R3 will receive I3. All these currents will then finally rejoin at this point and then complete the circuit. So we see that in parallel combination current divides but potential remains the same because all the resistors are connected between only 2 points. Now we can see that I is equals to I1 plus I2 plus I3 in these cases. By applying Ohm's law we get V upon Rp, where Rp denotes equivalent resistance of resistors in parallel combination. V upon R1, V upon R2, V upon R3. If we eliminate V, we will get the reciprocal of the equivalent resistance in parallel combination is equal to the sum of the reciprocals of individual resistances. So this is the formula for equivalent resistance in parallel combination and this is the formula for equivalent resistance in series combination. Now let us discuss about an example regarding the series and parallel combination. Suppose it is a combination. These are three resistors R1, R2, R3 each of 2 ohm. Now it is very clear that if current will flow from this branch, it will divide in these 2 branches. क्योंकि current यहाँ divide हो रहा है, that means ये दोनों resistors आपस में parallel हैं. तो इन दोनों की equivalent resistance अगर हम निकालते हैं, तो we will get 1/2 plus 1/2 equivalent resistance 1 ohm. तो इस part की equivalent resistance 1 ohm है. और अगर हम इस diagram को simplify इस तरीके से कर देते हैं कि अब R1 is 2 ohm और ये पूरा एक resistor से हम दिखाएं that is R dash which is 1 ohm. अब ये दोनों resistors आपस में series में हैं, तो we will simply add 2 ohm and 1 ohm, that gives 3 ohm. So equivalent resistance of all these three resistors gives 3 ohm resistance. Now
There are domestic circuits. These are the circuits which are used in our home in the mains supply. The domestic circuits are always arranged in parallel combination. इसका मतलब हमारे घर में जितने भी डिवाइसेस होते हैं, ट्यूबलाइट्स हैं या अप्लायंसेज हैं अलग अलग, वो हमारे जो मेन सर्किट से कनेक्ट होते हैं वो सभी आपस में पैरेलल होते हैं. सीरीज नहीं होकर पैरेलल होने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन की बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अलग अलग अप्लायंसेस को अलग अलग पावर या अलग अलग करंट चाहिए. फॉर एग्जांपल, एक गीज़र बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, जबकि एक छोटा सा बल्ब या कोई ट्यूबलाइट काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी. देयरफॉर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जैसे हमने देखा, हर एक डिवाइस अपने अकॉर्डिंग करंट ड्रॉ कर सकता है. तो दिस इज़ वन एडवांटेज. सेकेंड, अगर कोई एक अप्लायंस ब्रेक हो जाए तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है और बाकी डिवाइसेस भी काम नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल, अगर ये रेजिस्टर ब्लॉक हो जाए या ख़राब हो जाए तो करंट आगे फ्लो ही नहीं करेगा और ऑल द 3 रेजिस्टर्स विल स्टॉप वर्किंग. हाउएवर, पैरेलल के केस में अगर एक अप्लायंस ख़राब हो भी गया है तो करंट बाकी सारे अप्लायंसेस में से फ्लो कर सकता है और बाकी सारे डिवाइसेस नॉर्मली फंक्शन कर सकते हैं. The next advantage is that in parallel combination, the loss of energy is very less. Less heat is generated. This is because, as we can see, that there is a generalization कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, इट इज़ लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम. क्योंकि यहाँ पर एड ऑन हो रहे हैं और जो सपोज अगर R3 लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है तो उसमें हम कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं. दैट्स वाई फाइनल रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी ग्रेटर. जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कम हो जाती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसीलिए हीटिंग लॉसेस भी कम होते हैं, एनर्जी लॉसेस भी कम होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में. नाउ जब यहाँ पर हम हीट की बात कर रहे हैं तो लेट अस मूव ऑन टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जब भी करंट पास करता है किसी कंडक्टर से, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो उनमें आपस में फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, ये हम सभी को पता है. तो यही हीट, इसी तरीके की हीट इलेक्ट्रॉन्स में भी जनरेट होती है. जितना ज़्यादा फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है उतनी हीट जनरेट होती है, एंड दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अलग अलग डिवाइसेस में यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक गीज़र, ये सब वो डिवाइसेस हैं जो किसी न किसी तरीके से हीट जनरेट करते हैं, और जो हीट ये जनरेट करते हैं वो हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, गीज़र में हम पानी गर्म करने के लिए उस हीट को यूज़ करते हैं. सो नाउ इन डिवाइसेस में ऐसे एलिमेंट्स का यूज़ होता है जिनमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट पावर. जैसे कि पावर हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम. हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ पर वर्क की जगह हम VQ लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, एंड टाइम. नाउ VQ is also again Q is current into time, so we can replace Q by IT in the equation and we get P is equals to VI. So this is electric power, यानी कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट पास कर रहा है, सपोज उस कंडक्टर से I करंट पास कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स में V है, तो P पावर वो कंज्यूम कर रहा है. जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हम कहते हैं पावर कंज्यूम कर रहा है, तो वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, इक्वल टू VI, एंड द SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, डिनोटेड बाय कैपिटल W. नाउ वर्क डन जो भी होता है, वर्क डन हम करते हैं, जैसे यहाँ पे भी हमने वर्क डन किया था पोटेंशियल डिफरेंस के केस में. जो वर्क डन हम चार्जेस पर करते हैं वो उसकी हीट एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है या फिर एक्सप्रेस होता है. तो वर्क डन जो होता है वही हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वर्क डन होता है पावर इनटू टाइम. जैसे पावर है वर्क डन अपॉन टाइम, तो वर्क इज पावर इनटू टाइम. पावर हमने कैलकुलेट किया था VI एंड टाइम T, and work done here is converted into heat energy which is denoted by H. That means अगर किसी कंडक्टर में I करंट फ्लो कर रहा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस एंड्स के अक्रॉस V है और T टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें हीट जो जनरेट होगी दैट विल बी इक्वल टू VIT, एंड दिस इंडिकेट्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. दैट मीन्स अ कंडक्टर विद करंट I, potential difference V across its end,
and current flowing for time t generates h heat in time t. Now इसी फॉर्मूले में अगर हम V को रिप्लेस कर दें IR से, जैसे कि ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है, तो we will get H is equals to I square R T. Now this particular equation represents Joule's law of heating. Joule's law of heating is indicated by the equation H is equals to I square RT, which states that the heat generated in a resistor is directly proportional to the square of the current, it is directly proportional to the resistance and is directly proportional to the time. यानी कि जितना ज़्यादा करंट होगा उसके स्क्वायर टाइम्स ज़्यादा हीट जनरेट होगी, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी, और जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उतने ही ज़्यादा हीट किसी भी रेजिस्टर में डेवलप होगी. अगेन इसी इक्वेशन में अगर हम I को रिप्लेस करते हैं V अपॉन R से बाय ओम्स लॉ, वी विल गेट H इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R T. This is another equation that can be helpful for solving numerical problems. For numerical problems, you can refer to our book of DNA Education Key Points Science Class 10th. Various numericals based on these formula are described with solutions very well in the book, and you can refer it for your practice. Now, there are certain applications of the heating effect of current. First, filament of bulb. जो बल्ब का फिलामेंट होता है जो एक्चुअली लाइट एमिट करता है वो टंगस्टन का बना होता है. वाई? बिकॉज टंगस्टन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो रेजिस्टेंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है एंड फाइनली हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. बट यहाँ पे ये रिक्वायर्ड है कि हीट जो जनरेट हो वो इतनी ज़्यादा ना हो कि वो फिलामेंट की वायर मेल्ट करके ब्रेक कर जाए, क्योंकि इससे बल्ब फ्यूज हो जाएगा. दैट्स वाई टंगस्टन इज यूज्ड, बिकॉज टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट इज 3380 डिग्री सेल्सियस. इतना ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए जब करंट हीट में कन्वर्ट होता है तो फिलामेंट ईजिली ब्रेक नहीं होता और अच्छे से हीट एंड लाइट एनर्जी एमिट होती है. अनदर एप्लीकेशन इज फ्यूज वायर. फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस जो हम अपने डोमेस्टिक सर्किट्स में यूज करते हैं. सपोज ये हमारा सर्किट है और इस सर्किट के साथ हमने फ्यूज वायर सीरीज में लगा दिया है, तो कभी भी ओवरलोडिंग की कंडीशन होती है या शॉर्ट सर्किटिंग होता है. मतलब बाय डिफेक्ट अगर एकदम से हमारे अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ कर ले मेंस से, तो ऐसी कंडीशन को ओवरलोडिंग कहते हैं. और ऐसे में जो डिवाइस है वो ख़राब हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और इवन फायर्स भी हो सकती हैं. इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम सीरीज में फ्यूज लगाते हैं. फ्यूज एक्चुअली एक वायर होती है जिसकी एक फिक्स्ड रेटिंग होती है. सपोज हमें मैक्सिमम करंट अपने सर्किट में 5 एम्पियर चाहिए, तो हम 5 एम्पियर की रेटिंग का फ्यूज लगाते हैं. जब तक 5 एम्पियर तक करंट फ्लो करेगा तो इट विल ऑल बी फाइन. जैसे ही करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा तो फ्यूज वायर उस एक्सेस करंट को हीट में कन्वर्ट कर देगा बाय दी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और उस हीट से वो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा. सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा और हमारा जो मेन सर्किट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, डिवाइसेस विल बी सेफ. सो दिस इज हाउ अ फ्यूज वर्क. फ्यूज वायर जो होती है बहुत स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट के लिए बनाई जाती है डिपेंडिंग अपॉन द रेटिंग्स. रेटिंग्स जैसे मैंने बताया एम्पियर्स में होती है, जैसे 1 एम्पियर की रेटिंग हो सकती है, 2 एम्पियर की रेटिंग हो सकती है, 5 एम्पियर एंड सो ऑन. यूजुअली फ्यूज वायर्स जो होते हैं वो कुछ मेटल्स के एलॉयज होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एटसेट्रा. इन सभी मेटल्स के एलॉयज से वायर बनाई जाती है जिसे हम फ्यूज वायर की तरह यूज करते हैं. कोई भी ऑर्डिनरी वायर हम यूज नहीं कर सकते. द नेक्स्ट टॉपिक इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. जब हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं तो आपने देखा होगा उसमें यूनिट्स लिखे होते हैं कि इतने यूनिट्स कंज्यूम हुआ. तो व्हाट इज दिस यूनिट? द यूनिट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. एज वी नो दैट एनर्जी इज पावर इनटू टाइम. ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट एंड 1 यूनिट ऑफ टाइम इज आवर. So we can say 1 unit of energy can be watt hour. So if we write kilowatt hour का मतलब 1000 watt into 1 hour. 1 hour has 3600 seconds.
So if we calculate this, we get 3.6 into 10 raised to the power 6 watt seconds. Now watt is also an SI unit, seconds is also an SI unit, and we know that the SI unit of work is joules. So we can replace WS by joules. So 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 raised to the power 6 joules. The thing to remember here is this kilowatt hour is the unit of energy and not power. ये energy की unit है, तभी ये joules में express हो रही है. अगर ये power की unit होती तो इसमें time नहीं होता, but time factor है, that means ये work done है, यानी कि energy है, power नहीं है. Now 1 unit is equals to 1 kilowatt hour. 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट कहते हैं, एंड जैसे कि हमने देखा दिस 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 6 joules. So this is all about electricity and circuits. For more details you can log into www.dnaeducation.com. Thank you.